पीछे बुद्धा लगा है खूब। नहीं हाँ हाँ बहुत बहुत चाहिए, ज्ञान ज्ञान बहुत चाहिए हमें। करेक्ट करेक्ट। तो इंग्लिश में करना है, हिंदी मिक्स करते हैं थोड़ा, इंग्लिश हिंदी, बताओ फिर आप देख इसमें बुद्धा क्योंकि कैसा मेरी लगा है। ऑडियंस इज इंटरनेशनल एज वेल, सो Yeah, ओ I think इंटरनेशनल कौन है भाई, कौन बैठे Exactly. कजाकिस्तान में कौन बैठा है? I think Radha Krishna will be better. यार आप नहीं क्या बुद्धा कर रहे हो, ये बुद्धा ज्यादा हो बुद्धा गया बेटर, थोड़ा, बुद्धा ये तो बेटर। बहुत ही ज्यादा हो चुका है। राधा कृष्ण के अरे नहीं बुद्धा बेटर, ये तो वो लग रहा है, सच में ये तो कोई शादी का सेट लगेगा। रोमांटिक लग रहा है तू। एंड वी आर एनीथिंग बट ठीक रोमांटिक है। बिकॉज़ दिस इज ओके ट्रोलिंग। Oh God, I don't know how this episode is gonna be. अब बैठिए है मस्त। नहीं पर ये देखिए मूर्ति कैसी लग रही है इसमें। मूर्ति मस्त है, अच्छी कैमरे- बुद्धा कैमरे। आज बुद्धा जी की बात करेंगे। अच्छी लग रही है। फ्रेम बताओ कैसा आ रहा है, फ्रेम तो बहुत सारा, फ्रेम तो लगाया नहीं तूने। मतलब फ्रेम अच्छा, वो फ्रेम वीडियो। रतन धन पायो। मैं समझ चश्मे का फ्रेम नहीं लगाया। नहीं नहीं ये अच्छा लग रहा है, ऐसे और कुछ नहीं, अगर ये बीच में थोड़ा है तो नहीं कुछ नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो यार चीयर्स हो जाए इसी बात पे। लाइट, एक्शन, कैमरा। बढ़िया चीयर्स यार। पानी सही नीट। शॉट्स। ओके यार मेरा इसने अब तक टिकट के पैसे नहीं दिए। कौन सा आई ट्रैवल फ्रॉम कनाडा। पॉडकास्ट टेक 1 2 3। टाइम आउट। Okay, rolling. So, hi everybody, welcome back to my channel. Okay, rolling. ओके ट्रोलिंग। But okay, rolling. Today I have with me Mr. Pranshul. So to give you a background, he's not my friend, but मतलब ये बढ़िया इंट्रोडक्शन है। मतलब he is not something, he is not this। he's okay, so I met him through my fufa, who you must have seen in the last few episodes of the podcast, and that's how we met in Dubai. And yeah, he lives in Canada with his wife and a very cute Yeah. kid. I was scouting grooms for her for quite some time। सबने रिजेक्ट कर दिया इसको। That was a fail. And he tried to search for somebody in his own family as well, but एपिक फेल। बंदे ने रिजेक्ट कर दिया, एकदम कह रहा है मैं शादी नहीं करूंगा लाइफ में अब। oh god, yeah. This episode is gonna be okay trolling, as you said, because I Right. think he'll be trolling me a lot in this episode. Let's see. Okay, so to start with, you live in Canada, okay, right? For now, yes. So how is that? Yeah, for I think for the longest time, we have stayed in Dubai, almost close to 10 years. So in 2020, in the later half of 2020, we decided to move to Canada. Okay. So the opportunity came because of work, but we were anyway exploring options because Okay. we just thought maybe having a very decent secondary passport would be a good thing to have for the future. Wow. क्योंकि we can stay here in Dubai as long as we want. Job है, बढ़िया चल रहा है सब, but then you never know when the axe will fall, then what will happen, right? तो इंडिया जाने का मूड नहीं है, इंडिया जाना नहीं है। Why? I don't think हम settle हो पाएंगे। Okay. society Like, wise, what do you not like in India? भसड़, इंडिया की भसड़ शायद उसमें एडजस्ट नहीं पाएंगे अब, Maybe, राइट? yeah, मतलब that's true. हर जगह पे इतनी ब्यूरोक्रेसी है और चिक चिक झिक झिक है। मतलब Yeah. इंडिया इज अ वेरी नाइस हॉलीडे डेस्टिनेशन फॉर अस नाउ। You will soon realize, and I think hope you will Oh, I hope. Let's come back see. running to Dubai. But Dubai does that to you. I think काफी spoiled. Dubai does that to you. I think most of the foreign land would do that to anyone. Like इससे पहले I was in Singapore for studies. वहाँ पे मैंने culture देखा different. फिर यहाँ आए, यहाँ पे देखा। यहाँ पे you have everything what Indians want, but बहुत सलीका है, चीजें स्मूथ चल रही हैं, strictness है, law and order है, Yeah, and safety. safety exactly। मतलब अगर मेरा खुदा ना खास्ता वाइफ से झगड़ा हो जाए, मैं इसको बोलूँ यार, आप बोलो वो बोलेंगी। वो मुझे बोलेगी यार तुम गाड़ी से निकल जाओ, तो I can come home safely। मुझे कोई रास्ते में मॉब नहीं करेगा। That is true. Yeah, that's one thing. But then again, a lot of foreign countries also are not very safe. Like जैसे आपका UK हो गया या कुछ, वहाँ पे भी तो काफी ऐसे मग होता है। But have you ever had any mugging experience ऐसा कुछ लाइफ में? I think एक बार हुआ था यूरोप में, when we went to Europe in 2017 On a holiday? हॉलीडे पे। हाँ, तो मेरा वॉलेट वगैरह चोरी हो गया था। कैसे? We were in Italy। पता नहीं कैसे हो गया था, वो हो गया था चोरी। तो मेरा वॉलेट गायब हो गया, ये नहीं पता कैसे हुआ, किसने किया, बट हुआ सड़क पे चलते चलते, मतलब कोई सेल्फी ले रहा है, कुछ कर रहा है, तो इट्स वेरी कॉमन। Crazy. But so
Like in Canada, how do you maintain? Like, do you have a social life, or because of your kid, you don't have any social life? Because the parents, new modern parents, tend to not have a social life after. I don't they think have so यार. kids. ऐसा नहीं कि पेरेंट्स डोंट हैव सोशल लाइफ. Hmm. आई थिंक हमारा लाइफ स्टेज बहुत डिफरेंट है क्योंकि हम ऐसे टाइम पे कनाडा गए हैं जब हमारा बच्चा है और वो अभी स्कूल जा रहा है, वो भी काफ़ी डिमांडिंग है. प्लस द होल स्ट्रक्चर इन कनाडा इज़ वेरी डिफरेंट. यहाँ पे आपके पास नैनी सपोर्ट है, यहाँ पे आपके पास मेड सपोर्ट Yeah. है, आपके पास हाउस हेल्प की अवेलेबिलिटी बहुत Hmm. अफोर्डेबल True. है, Yeah. इजी है. मिल जाएगा. तो आप यहाँ पे ना आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो थोड़ी एलिवेटेड है. मतलब मैं इससे पहले व्हेन वी वर स्टेइंग इन दुबई, सो वी वर इन पाम, वहाँ पे सब कुछ बहुत सॉर्टेड था. सुबह मेड आती है, खाना वाना बना के जा रही है, बर्तन साफ कर रही है. तो मेरा जो टाइम है दैट वाज वेरी क्वालिटी टाइम विद माय सन. ठीक है. और मतलब फैमिली के साथ भी, जैसे मैं सुबह वी ऑफ्टन काइंड ऑफ स्टोल टाइम टू यू नो go out and have a coffee together. So the not True, not like you. not the son and I but the wife and I. तो मतलब बच्चे को मैं कॉफी समझ गई थी. तो वो सब है. मतलब यू हैड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ क्योंकि यहाँ पे इतनी सहूलियत है, राइट. वो चीज़ वहाँ पे नहीं है. वहाँ पे आप सुबह उठो, आपको टेंशन है कि अब ब्रेकफास्ट क्या बनाना है बच्चे का, फिर उसको स्कूल ड्रॉप करके आना है, फिर वापस आके वो जो ब्रेकफास्ट बना है उसके बर्तन साफ करने हैं, डिश वॉशर लगाना है, कपड़े धोने हैं, कपड़े धो के निकलेंगे तो उनको फोल्ड करना है. आधे ज़्यादा टाइम तो आपका हाउस होल्ड में निकल जाता है. तो जो आपका क्वालिटी टाइम है वो सारा इन्हीं सब चीज़ों में निकल रहा है. तो मेरे वाइफ से आधे से ज़्यादा डिस्कशन किचन में खड़े होकर निकलते हैं जब मैं चॉपिंग कर रहा हूँ या जब मैं बर्तन लगा रहा हूँ वॉशर में. तो ठीक है, आई थिंक वो भी डिफरेंट एक्सपीरियंस है. बट वो एक्सपीरियंस मैं जिंदगी भर नहीं झेल सकता. But मतलब इतना भी प्यार नहीं चल रहा है मुझे कि true. इतना सारा काम मैं can't even imagine. तब तो मैं भी नहीं करती. So I राइट. even तुम can't तो imagine. तुम तो पानी भी नहीं लेके आई यार. मैं ही लेके आई थी. But so did you learn any new cooking, ऐसा कुछ recipe, any new dishes because you do everything on your own. So sometimes you tend to find a passion for something. Sometimes like cooking. यार हम एक चीज़ तो है, मतलब जो हम दुबई में नहीं कर पा रहे थे, और मतलब वो हम ऐसे नहीं कि कॉन्शियसली नहीं कर रहे थे, बट हम नहीं कर रहे थे बिकॉज व्हेन यू हैव व्हेन यू कैन अफोर्ड द हेल्प तो आप फिर वो उन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते हो. बट हमने देखा है कि एटलीस्ट जो क्वालिटी फैमिली टाइम है, द थिंग्स दैट वी कुड हैव डन टुगेदर इन दुबई, वो हम नहीं कर रहे थे. वो हम अब कनाडा में एक्सप्लोर करते हैं, हम कर रहे हैं. जैसे वी कुक टुगेदर. सो माई सन इज टर्निंग 5 इन दिसंबर. तो वो हमारे साथ बैठता है, इनफैक्ट वो किचन में आके बैठता है, साथ में कुक करता है, देखता है चीज़ें कैसे चल रही हैं. आई कैन शो यू पिक्चर्स आल्सो, राइट. सो सी ही इज जस्ट सिटिंग एंड कुकिंग. So cute. Why don't you So- show it to the I can. This Buddha has been kept here to maintain some sanity in this conversation. I hope you're feeling good, huh? Yes. मुझे कोई cancel तो नहीं कर देगा मैं बुद्धा को ऐसे touch कर रही हूँ? ये देखिए. So he is Okay. cooking alongside with his mom. साथ में बैठ रहा है, food That's साथ में cute. food tasting चल रही है. That's nice. तो आई थिंक ये सारी चीज़ें हैं जो हमने साथ में करनी स्टार्ट करी, एक्सप्लोर करनी. अब घर में काम करना है तो काम बढ़ रहा है सब में, राइट. तो अपना रूम ढंग से साफ करना है. हम कार साथ में धो रहे हैं. यहाँ पे कार कब धोई थी मैंने यार, मुझे याद नहीं है. True. तो बट हमने वहाँ पे काफ़ी नई चीज़ें एक्सप्लोर करी हैं. जैसे मैंने वहाँ पे जाके सर्फिंग सीखी है. Wow. So I can surf now, मतलब properly I can stand on the surfboard. Then हमने hiking बहुत ज़्यादा, मतलब like random hiking. So we have done like a lot of hikes, almost 15 16 hike with the child. So we've been to Yellowstone. Last week हम एक island पे गए थे. We took a ferry. It was a very impromptu plan. बस जाना था. Wow. And we stayed in a tent for 2 nights. So I think that rustic experience that I could not experience in Dubai, वो मैं वहाँ कर रहा हूँ. Even And in it is really your adding up. own childhood, you must have not had experiences like exactly. this with our Correct. like, parents' generation. We never, even Right. my parents never did that. That's new. But also you also need to be that person कि you take initiative कि नहीं अभी यहाँ Yeah. जाना है, अभी वहाँ जाना है. वरना ऐसे parents भी होते हैं जो एकदम lazy पड़े रहते हैं, कुछ करते ही नहीं. I think if given a choice, मैं lazy parent हूँ. But I think I have got a really solid engine backing me up in the form of my wife. वो काफ़ी demanding है. I think she wants Virushka, part 2. the best for her child.
तो आई थिंक वो सही है, जब हम वहाँ पर हैं तो वहाँ की चीज़ सीखें. वी हैव That's ऑल्सो इन्वेस्टेड इन अ पैडल बोर्ड. हमने इस साल कम से कम paddle 8 या like 10 पैडल बोर्डिंग. oh We have done a lot of oh paddle boarding this year. So my son knows how wow to set up the paddle board now. He can get into the water on his own. हम जाने नहीं देंगे but अकेले नहीं जाने देंगे. But he knows how to set up the paddle board. कहाँ पे शाफ्ट लगेंगी, कहाँ पे पैडल जुड़ेंगे. So he knows that. तो ये ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो हम शायद यहाँ पे एंजॉय नहीं कर पाए थे, या हमने यहाँ पे उस टाइम सोचा ही नहीं कि हम कर सकते हैं. that's sweet. तो आई थिंक whenever I will come back, or if I come back, You might miss this. I may want to just carry on with those pieces even here. Wow. वो जो extra curricular वाली चीजें हैं, I may not want to stop that. That's sweet. I think ये आपको बहुत प्रिपेयर भी करता है for a lot of uncertainties in life. जैसे आजकल क्या है ना कि बच्चों की जो पेरेंटिंग है, जो एटलीस्ट मैं कनाडा में ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा ओवरली स्ट्रक्चर्ड है कि यार स्टेप 1 होगा, फिर स्टेप 2 होगा, फिर स्टेप 3 होगा. तो जैसे अभियान को हमने बोला कि यार हम येलोस्टोन जा रहे हैं, ठीक है, तो उसका सवाल था कि पापा किस दिन जा रहे हैं, वहाँ पे क्या देखेंगे, कब जा रहे हैं, कितने दिन बचे हैं, किस फ्लाइट से जाएंगे, फ्लाइट का कलर क्या है, कौन सी सीट पे बैठेंगे. ही वांटेड टू नो एवरीथिंग. तो बच्चा ना, इसका क्या मतलब है कि बच्चा इज नॉट गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर एनी सरप्राइजेस. और वो ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आज की जनरेशन को खा रहा है. आई थिंक यू नीड टू बी रेडी फॉर फेसिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग. ये आजकल इतनी मेंटल हेल्थ क्राइसिस क्यों हो रहा है यार, एक मतलब बहुत सारी उसके रीजंस हैं, बट आई थिंक ये भी है कि हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं चेंजेस. एक्सेप्ट करने में टाइम लगा रहे हैं, या एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं. तो आई थिंक ये जो सोशल सेटअप बचपन में मिल रहा है बच्चों को, आई थिंक दे नीड टू बी रेडी फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग. मतलब जो भी मिल रहा है उसमें रास्ते निकालो यार, उसमें बेस्ट चीज निकालो. That's also I feel it's a big piece कि इंडियन पेरेंट्स का काफी ये वाला एटीट्यूड रहा है बहुत टाइम तक कि इसको ऐसे छोड़ दो, ऐसे. मुझे ऐसा लगता है कि that's why a lot of people of our, मैं अपना एज तो नहीं कहूँगी मे बी, बट अ बिट मोर ओल्डर दैन मी, वो ज़्यादा इजीली कि चल हो जाएगा ये कर. दे हैव अ वेरी जुगाड़ू वे ऑफ लाइफ व्हिच किड्स दीस डेज माइट नॉट हैव, क्योंकि एवरीथिंग इज गिवन टू देम लाइक सर्व्ड ऑन अ प्लेटर. हाँ, एक्चुअली थोड़ा ऐसा भी है कि आज के डेट में पेरेंट्स काफ़ी कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन ज़्यादा रिसोर्सफुल हैं, अफोर्डेबिलिटी बेटर है. तो अब जितना यार, अब कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को सफ़र करता नहीं देख सकता, तो इन अ वे इन दैट स्पिरिट पेरेंट्स लेके भी आ जाते हैं चीज़ें, राइट. तो एक तरीके से सही है, पेरेंट्स अपना शौक पूरा कर रहे हैं, बट वो शौक पूरा करने के चक्कर में ना बच्चों का आगे का फ्यूचर थोड़ा ख़राब हो रहा है. तो एक्सेप्टेंस रहनी चाहिए यार कि मतलब जैसा भी हालत होगी, जैसा भी हाल होगा देख लेंगे यार. एंड लाइक वो व्हाट अबाउट द फैक्टर कि जैसे उसको कुछ चाहिए होता है, लेट्स से योर चाइल्ड, तो डू यू गिव इट टू हिम इजीली, या यू जैसे कि नहीं इसके लिए ये करना पड़ेगा तब ये मिलेगा, लाइक डू यू हैव द गिव एंड टेक मेथड, और डू यू जस्ट लाइक हाँ ठीक है ले लो, नया टॉय चाहिए यार. एक्चुअली मुझे ना बहुत लोग ऐसी ट्रोल कर देंगे इस चक्कर में, क्योंकि हर मतलब पेरेंटिंग आज के डेट में इतनी ज़्यादा साइंटिफिक हो गई है ना कि हर बंदे को लग रहा है कि यार ही इज द माइंड रीडर, उसको समझ में आ रहा है कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है, इस एक्सप्रेशन से बच्चे का मीनिंग ये है, रीड बिटवीन द लाइंस. इतना कोई परफेक्ट होता नहीं है, मतलब मुझे लगता है कि यार लेट किड्स बी किड्स, राइट. बट ये कि बचपन से ही कुछ एटीट्यूड सही करना जरूरी है. ऐसे नहीं कि यार बच्चे ने घड़ी मांगी तो घड़ी उठा के दे दी, ऐसा नहीं है, राइट. टू ड्रॉ द लाइन कि उसको स्पॉइल भी नहीं करना है, बट लॉजिकली समझाना जरूरी है. देखिए मतलब मुझे लगता है कि बच्चे ना समझ जाते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कितने पेशेंस से समझाना चाह रहे हैं. तो ऐसा नहीं है मैं कोई एकदम बुद्धा बने बैठा हूँ, ऐसा नहीं है. पेशेंस डज रन आउट, ऐसा नहीं है. बट ये कि एज मच एज पॉसिबल हमने बचपन से अपने बेटे को इस तरीके से ग्रो किया है अभी तक कि हम रैशनल ड्रिवन रहेंगे. हम ये नहीं दे रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन, इसके लिए तुम कुछ करोगे इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. मतलब बट ये अभी घड़ी अभी नहीं मिल सकती जब तक आप टाइम देखना नहीं सीखोगे, क्योंकि आप अगर हम देंगे भी तो आप टाइम नहीं देखोगे, यू विल आस्क मी अगेन. ठीक है, तो हम 3 क्लासेस करेंगे, आई विल टीच यू टाइम, उसके बाद इफ यू डू दिस तो उसके बाद देन यू कैन get the watch. ठीक है, if the small needle comes on 7 and the big needle comes on this, तो ऐसा मतलब it is linked to again like लॉजिक ड्रिवन है. बट ऐसे नहीं कि यार तुमने घड़ी मांगी तो हम साला घड़ी ला के दे देंगे, ऐसा नहीं है. मतलब हम
तुम्हें चीज़ें खैरात में नहीं मिल रही हैं, तुम्हें Yeah, मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। हाँ और जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे रात को वो है कि जैसे स्लीप स्टोरी टाइम, तो एक टाइम तक उसको स्लीप स्टोरीज मिली, बट अब उसकी एज आ रही है कि यार वो वर्ड्स मिला मिला के चीज़ें पढ़े। तो अब ऐसा है कि यार एक स्टोरी तुम मुझे पढ़ के सुनाओगे और एक फिर मैं आपको सुनाऊंगा। तो ये है कि द कल्चर दैट आई वांट टू इनकलकेट इन हिम कि यार तू मेहनत कर, पढ़, तू भी मुझे एक स्टोरी सुना, फिर मैं भी तेरे को सुनाता हूँ, फिर देन वी विल शेयर कि तुमने इससे क्या सीखा क्या नहीं सीखा। तो उसकी स्टोरी सिंपल होती है कि बैट मेट अ फॉक्स, तो उसकी सिंपल है, बट एटलीस्ट ही इज एबल टू ही इज परसुएडेड टू रीड द बुक्स। तो वो आई थिंक मुझे लगता है रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट एक स्किल सेट है, वो होना चाहिए, उसमें हम फोकस कर रहे हैं। That's nice. Sometimes yeah, to have, I think you have a good balance there. क्योंकि अगर मैं अपना बचपन याद करती हूँ तो मुझे I think I was in grade 7th or 8th and I wanted a whiteboard because मुझे टीचर खेलना बहुत पसंद था. And I was like मेरे तो को अब तक चल रहा है वो गेम, खत्म ही नहीं हुआ तुम्हारा? No, it's still going on. तो मैंने पापा को बोला कि मुझे व्हाइट बोर्ड ला के दो और उन्होंने कहा कि नहीं, व्हाइट बोर्ड तभी मिलेगा जब 8th क्लास में तुम्हारा A+ से ऊपर ए से ऊपर ग्रेड आएगा, 82+ आएगा, बिकॉज 82 to 100 के रेंज में यू हैड A and A+ का कुछ तो उसके बाद तुमने सफेद दीवार पर लिखना स्टार्ट कर दिया? नहीं, no, I worked for it. I got 80 something, 85 something जो भी, but the thing is it also develops अंदर ना खुंदस भी आती है कि यार मेरे को ये करना पड़ रहा है इसके लिए, तो फिर जब तुम बड़े होते हो इतनी ना, टुच्ची चीज के लिए इतनी मेहनत। हाँ, so sometimes you feel that anger also when things are not given to you. So sometimes kids might also turn it against the parents, but what it's made me into, it's just made me into a very hyper independent person now. All these experiences कि छोड़ो, बचपन में तो मिली नहीं, अभी कर लेती हूँ। हाइपर इंडिपेंडेंट मतलब जो बुआ जी के आ रही है खाना खाने के लिए? That's not true. That's not true. Okay. I was saying let's not reveal everything in this podcast. I think Independence अंदर से आती है, खाने से नहीं आती है। चलो ठीक है, मान के बैठते हैं। बढ़िया, ऐसा भी है कि एक्चुअली सब बच्चे सेम बैट तो है नहीं, और ये मतलब इट्स अ वेरी क्लीशे स्टेटमेंट, हर बंदा अलग अलग है यार, मतलब हर पेरेंट को अपने बच्चों को पढ़ के समझ के करना चाहिए। अब जो मेथड तुम्हारे ऊपर काम कर गया मेरे ऊपर नहीं करा, ठीक है। वैसे तो मैं बचपन से पिटा नहीं हूँ और बहुत सारी चीज़ों में पिटना चाहिए था मुझे, तो उसका कुछ ना कहीं इम्पैक्ट आया होगा, राइट। मतलब मेरे में भी बहुत जिद है और बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जिद है, तो अब ऐसे मेरी बीवी रहेगी बहुत मेस्ड अप विद मी कि यार तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें बचपन से सही किया होता तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। बट फिर मेरी कुछ और ही पर्सनालिटी होती, राइट, फिर मैं शायद अपनी वाइफ को मिलता ही नहीं, उसको पसंद ही ना करता। It all culminates into the person who you are today. Anyway, यार बहुत फिलोसफी हो गई। He must be happy. शाइन करन का हेलो। छू सकती हूँ ना, anyway. So next actually मुझे कुछ पूछना था जो मैं भूल गई। Have you learned this on the go या or मुझे your शायद wife? मेरी वाइफ से मैसेज, हाँ बिल्कुल सही बोला मैंने। Tulika, that's you. Yeah. Congrats. Good parent. So how do you guys, do you have a good balance of like a good cop bad cop या कैसे? Always. Good cop bad cop. Always, yeah. Who's the good cop? I think normally I am, because I'm the weaker parent, I would say. I am very indulgent dad, I must say that. And I think that's where my wife Tulika, she has to, you know, keep two of her children in the house in control. हम दोनों यार एक्चुअली, मैं और मेरा बेटा, हमें बहुत मज़ा आता है साथ में खेलने में, साथ में से शॉपिंग करने में और चीज़ एक्सप्लोर करने में। और सम टाइम आई थिंक आई ऑफन गेट कैरिड अवे, क्योंकि उसको पता है यार पापा को ट्रिक कैसे करना है, उसको मेरी शायद नसें पता है, तो वहाँ पे आई थिंक माई वाइफ प्लेज अ स्ट्रॉन्गर रोल। आई थिंक अगर वो नहीं होती तो बच्चे बिगड़ के हाथ से बाहर निकल गया होता। तो ये है, आई थिंक इन जनरल जो हम लोगों ने ऑन पेपर डिसाइड किया है कि यार हम ना डिवाइडेड नहीं रहेंगे, जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा बोले कि यार मैंने पापा से बात कर ली और आप ये कर दो मेरे लिए। तो वो हम लोगों का ऑन पेपर पैक्ट है अभी, वो आई थिंक इट इज स्टिल अंडर वर्क इन प्रोग्रेस, वो आई नीड टू बी बेटर एट इट, कि both of you should be a team. we are a team, मतलब we are a committee. तुम कुछ बोलोगे तो हम एज अ कमिटी डिसाइड करेंगे, तो
ऐसा नहीं है कि मतलब उसने बोल दिया कि पाप ने मुझे बोल दिया देन यू हैव टू डू इट, या वाइस वर्सा. वाइस वर्सा ऑफ्टन हैपेंस विद मी, क्योंकि वो बोलता है कि मम्मी ने बोल दिया तो आप कर दो, तो आई नॉर्मली डोंट चेक. सो आई थिंक Oh, यार shit. बच्चे बहुत स्मार्ट हैं यार आजकल. दे नो हाउ टू ट्रिक. उनको पता है That's कि true. आपकी दुखती रत कौन सी है, आपका सॉफ्ट पॉइंट कौन सा है. वो मतलब दे वुड नो कि यार पापा इस चीज पे पिस ऑफ हो जाएंगे तो साला करो, अब मैं दिखाता हूँ. Some बच्चे are very clever these days, but Yeah. that's a good way of navigating through. आई थिंक वो Like, कॉन्सेप्ट अच्छा है. वो इन प्रैक्टिस करना काफी मुश्किल है जब लाइफ इतनी तेज चल रही है. अब मम्मी ऑफिस गई हुई हैं और बच्चा घर पे है, फिर मैं घर पे हूँ, तो वो चीजें इम्प्लीमेंट कर पाना काफी मुश्किल है. बट वी आर ऑनेस्टली ट्राइंग कि यार हम दोनों ना वी आर नॉर्मली एट द सेम पेज. ऐसा होता नहीं तो हम यार इतने साल साथ में काटते हैं ना. वी आर नॉर्मली ऑन द सेम पेज. बट बच्चे को लेके यार लाइफ में चेंजेस आते ही आते हैं. I'm not sure if why you're asking so many questions about kids. Are you No, I'm not pregnant. right? But generally just wanted to know. I will digress into another topic very soon, which is relationships and all of that. Also. Oh my god. Because that's a very interesting. That उसके बारे में मुझे बात करने में बहुत मजा आता है. अच्छा. तो इसलिए. आप बताइए अपना. So you tell me first. You tell me. You tell me कि how long have you known your wife now? Yeah, we met in our bachelor's second year. So I was a college senior. I am counting years in my mind. I think we've been together almost for 14-15 years now. Wow. Ha. 14? That's wow. Yeah. Ever gotten bored or? I think she might have. Yeah, but मुझे लगता है कि मैं इतना entertaining हूँ. मुझे भी लगता है. मतलब मैं डांस करता I mean, रहता हूँ. मैं entertain. हाँ मतलब मुझे भी लगता है मतलब Yeah, like I will always see be that the energy, the entertainer. crazy energy है. Yes. तो मतलब मेरे PJs are like amazing. तो मेरी वाइफ कोई बोर नहीं होती है. वो like यार The come fact on, that grow you up. just called it a PJ. Pajamas का short form अब PJ हो गया है. हाँ यार मतलब Nobody calls it PJs. डैड. अब मैं जब से Dad jokes. डैड बनाऊँ ना तो मुझे एकदम हो गया कि यार मैं तो डैड जोक सिखाऊंगा अपने बच्चों That को. yeah. तो मतलब मेरी वाइफ इज आई थिंक शी इज ऑफ्टन पिस्ड ऑफ. बट उसको पिस ऑफ होने में अब उसको हो गया कि यार मैं पिस ऑफ रहूंगी इसके साथ. तो शी हैज मेड पीस विद दैट कि यार अब मतलब अब इसी का रहना है ये साला ये फिर से. That's a good point. मैं भी सोचती हूँ कि you don't need to align. People talk a lot about कि हमारी my boyfriend and I we have the same love language, but I think that's so stupid. You should have the same anger का language. तो like that should be a good factor. करेक्ट. आई थिंक ये है कि अगर आपका झगड़ा हो ना, ऐसे मैं बताता हूँ ऐसे इन जनरल मेरी वाइफ और मेरा कोई भी टेस्ट मैच नहीं करता है. मतलब खाने में शी लाइक्स चाइनीज इटालियन विच आई एब्सोल्युटली डोंट. और मेरा टेस्ट है कि यार मैं इंडियन देसी खाना खाऊंगा. फिर मुझे डेजर्ट्स में भी देसी चीज़ें पसंद हैं. एंड शी इज़ मोर इनटू यार कि नई नई चीज़ें ट्राई करेंगे. उसको नई नई चीज़ें ट्राई करने का बहुत शौक है कि नया कैफ़े चलते हैं. मुझे कि यार वहाँ पे खाया था वही खा लेते हैं दोबारा से, बढ़िया है. तो हॉलीडेज के मामले में शी इज़ इनटू कि यार नई नई जगह एक्सप्लोर करेंगे. मेरा कि यार नई नई थोड़ा सेफ जगह ही चलते हैं, ज़्यादा क्यों लेना एडवेंचर. वहाँ पे गोलियाँ चल रही हैं, वहाँ पे नहीं जाएंगे. तो शी इज़ लाइक अरे कोई नहीं, दुनिया जा रही है, लेट्स जस्ट डू इट. तो इस चक्कर में हमारी जॉर्डन की 2 बार ट्रिप मिस हो चुकी है. हाँ वो जस्ट बिकॉज ऑफ कि आई काइंड ऑफ आई हैड कोल्ड फीट. एक्चुअली उस टाइम अच्छा हुआ. एक बार ऐसा हुआ था हम जा रहे थे बट वहाँ पे ब्लास्ट वगैरह हो गया था. बट देन शी वाज लाइक अरे होते रहते हैं, चलते हैं. तो so funny. हाँ बट हमारे अलाइनमेंट इन सब चीज़ों में बिल्कुल अलग है. आई थिंक दैट व्हाट आल्सो कीप्स It's so like fresh and you're always on your toes. या मतलब ऐसा लगता है कि मतलब ठीक है चलो अब ये वाली चीज़ ट्राई कर लेते हैं यार, क्या ही होगा, चलो ठीक है एक दिन उसके लिए सही. मतलब वन फॉर द टीम वाला है कि मतलब एक दिन. Yeah, So, I think both the parties have to be a bit aligned. मतलब थोड़ा थोड़ा आई थिंक दोनों में ना आई थिंक एक्सेप्टेंस है. मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम दोनों ना, एक तो मुझे लाइफ में आई एम नॉट वेरी फिनिकी अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. मैं फिनिकी होगा मे बी एक या दो चीज़ के बारे में कि यार अच्छा मतलब मुझे यही ऐसा ही चाहिए कि मुझे शर्ट प्रेस्ड ही चाहिए. जैसे Okay. मतलब मुझे ये कि मुझे सुबह शर्ट प्रेस्ड ही चाहिए. मतलब अगर शर्ट प्रेस नहीं होगी तो मैं घर से नहीं बाहर निकलूंगा. ऐसा है. ये दो चीज़ें हैं. बट इन जनरल मेरा लाइफ में ऐसा है कि आई डोंट गिव टू फक.
about lot of things in life कि मतलब चल रहा है ठीक है, खाना बन गया नहीं तो ब्रेड पे बटर लगा के खा लेंगे यार। ये सेम गोस फॉर माय वाइफ ऑल्सो, उसको भी ऐसा नहीं है कि यार बर्तन ऐसे ही अरेंज चाहिए या कपड़े ऐसे ही वॉश चाहिए। वी आर वेरी चिल्ड आउट इन दोस थिंग्स। Okay. तो ये है। Wow. And then, so who's the, let's say if there's a fight, so mostly who's wrong? I mean, we all know it's ये you, मतलब but हाँ मतलब ये तो आई थिंक आप मेरे बेटे से पूछोगे बोलेगा कि पापा मम्मी यू आर द बॉस बट मम्मी इज द बिगर बॉस। तो big boss. उसको पता है, हाँ उसको ये पता है कि यार मम्मी इज ऑफ्टन राइट, इज राइटर So, देन। do you agree with this statement, which I've seen in a lot of podcasts as well, that if to have a happy marriage, always the wife is right and listen to the wife? Is that correct or? आई थिंक मेरे केस में तो करेक्ट ही है। मतलब मैं आई थिंक शी हैज हैड मोर एक्सपोजर ड्यू टू हर अपब्रिंगिंग। मतलब And maturity. एंड मैच्योरिटी। हाँ आई थिंक ऐसी मैच्योरिटी तो मतलब मैं बोल सकता हूँ मेरे में भी है, बट आई थिंक शी हैज बेटर experience with the way she has been groomed by her parents। और उसके डिसीजन यार अब इतने साल हो गए, अब मैंने कई बार डाउट भी किया कि यार ये शायद सही नहीं होगा, बट मेरा रिग्रेशन टेस्टिंग हैज बीन नाउ वैलिडेटेड। वो उसकी चीजें ना सही निकलती हैं। तो मुझे लगता है यार मैं फिर क्यों ये साला लोड लूं अपनी लाइफ में, तुमने बोल दिया कर लेते हैं। Tulika, you're taking one for the team. Love it. या तो आई थिंक वो ऐसे नहीं है कि कॉलेज में फर्स्ट ईयर मिले और अचानक से उसके ऊपर सारी चीज़ों पे ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दिया। थोड़ा टाइम लगता है। आई थिंक कुछ चीज़ों में उसने एडवाइस दी, राय दी और वो वैसे ही टर्न आउट हो गई। फिर आई थिंक ग्रेजुअली आई थिंक एक एडवांटेज हमारे पास ये भी था कि हम लाइफ में बहुत जल्दी मिले और फिर उसका हमें डिस्ट्रैक्शंस कम हुए। मतलब हम वी डिड नॉट see other people. हाँ That's तो good. ये भी है। Focus एक पे ही. So when did you realize you wanted to marry this girl only? आई थिंक जब हम कॉलेज लास्ट ईयर में, जब मैं था कॉलेज लास्ट ईयर में, जब मैं निकल रहा था। Bachelor's college or master? हाँ बैचलर्स। Bachelor. तो मुझे लग गया था, मैंने कहा यार ये मतलब सब इतना सही है, सब सॉर्टेड है, मतलब ज़्यादा चिक नहीं है लाइफ में। शी इज एबल टू अंडरस्टैंड क्या मेरी लाइफ में प्रायोरिटीज़ हैं, उसकी प्रायोरिटीज समझ में आ रही थी। तो ऐसा नहीं था कि यार हमें लाइफ में कि पहले घर चाहिए, फिर गाड़ी चाहिए, उसके बाद ही शादी करेंगे। तो हमारे शुरू से एक अलाइनमेंट था कि यार सब साथ में कर लेंगे। Yeah, to build तो together. मतलब हम करेंगे ना तो साथ में जोड़ के कर लेंगे चीज़ें। तो That's मतलब so good. एक और एक 11 वाली चीज़ थी। तो विच आई थिंक कोइंसिडेंटली अलाइंड विद बोथ ऑफ अस एट दैट टाइम। ऐसा नहीं था कि मतलब मुझे ही था कि यार कि मैं अपना बैंक अकाउंट शेयर कर दूंगा, तो मुझे ये नहीं था कि यार वो पैसे लेके भाग जाएगी और उसको भी ऐसा नहीं था कि अगर वो मुझे कुछ बताएगी तो मैं आई वुड टेक। Wow. That's important. To build a life together. हाँ वो आई थिंक ऐसे ही था। मतलब इट जस्ट स्टार्टेड ऑन दैट नोट ओनली। और आई थिंक बैकग्राउंड वाइज भी आई थिंक वी आर वेरी सिमिलर, वे फ्रॉम वेरी टिपिकल Indian family. मिडिल क्लास फैमिली। तो चीज़ें काफ़ी सिमिलर हैं, रीजन काफ़ी सिमिलर है। मतलब शी इज आल्सो फ्रॉम नॉर्थ। Okay. Wow. तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, बट फिर भी यार कपल्स में बहुत सारी चीज़ों पे चीज़ें आर्गुमेंट होते रहते हैं। बट आई थिंक द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आप उन आर्ग्यूमेंट्स को कितनी जल्दी रिजॉल्व कर लेते हो। तो अभी आज तक हमारा कभी ऐसा कोई झगड़ा नहीं हुआ, टच वुड। मतलब तुमसे बात करके ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ उल्टा हो। I hope not. कि कोई झगड़ा एक दिन से ज़्यादा चला हो। मतलब हम वी मेक श्योर कि यार हम बात करके सोएंगे। या तो आई विल हैव टू मूव हर ऑन टू माई साइड कि यार तुम मेरे साइड, तुम मेरा वाला आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करो, या फिर agree to disagree, या फिर लार्जली जो ऐसा होता है कि मतलब शी प्रूव्स हर पॉइंट में बोलता है हाँ यार तुम सही थी, चलो ठीक है, बोले अच्छा ठीक है सॉरी बोलो, वो सॉरी निकलता है। फिर बाद में आई थिंक आई वुड मेक अ कॉफी या फिर चाय बना दी। इट वाज लाइक चलो यार चलो ठीक है। That's good. That's so good. We never sleep on a fight. Always, no, sorry, never sleep on a fight. Never sleep after. मुझे नहीं पता तुम Never sleep. Oh, यही तो है. Never क्यों लगी? Before sleeping, resolve the fight. Is all I want to say. That's all. Never take a fight to bed. That's what I was saying. चलो ये भी मान लेते हैं, ठीक है।
also these days couples therapy is trending a lot. They, Farhan अच्छा। Akhtar and Shivani Akhtar, वो अपने शादी से 1-2 दिन बाद ही they went for couples therapy. There's some recent interview they gave and Okay. all. Have you ever thought कि or just like read about what couples therapy is and No. everything? No. No. Okay. I don't think मुझे मुझे जरूरत पड़ी। जरूरत पड़ेगी तो मेरा थेरेपिस्ट साथ ही बैठा है यार, मतलब आई विल टॉक टू हर। आई थिंक आधी ज़्यादा चीज़ें तो यार आप बात करो तो आधी ज़्यादा चीज़ें तो ऐसी सॉल्व हो जाती हैं। आजकल मुझे लग रहा है कि यार ईगो ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो बात कर लो यार, आधी ज़्यादा चीज़ें ऐसी सॉल्व हो जाती हैं। चीज़ें शेयर कर लो, वर्स्ट केस में कुछ नहीं समझ में आ रहा था यार अपने दोस्त को बता दो, कोई ऐसा म्यूचुअल फ्रेंड तो हो गई जो दोनों से बात करता है, राइट? तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मैरिज काउंसलर्स का बिजनेस कर रहा हूँ, बट कि आई थिंक मुझे लग रहा है आजकल ना जैसे हाँ, बट मैंने देखा कि मैं जैसे अपने वर्क वाइज आई मैनेज अनदर ज्योग्राफी, और वहाँ पे एक कंट्री है, बहुत बहुत छोटी कंट्री है इन लैटिन अमेरिका में, और वहाँ पे मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ मैं लोगों से बात करता हूँ, क्योंकि उस कंट्री में ना वो काफ़ी ज़्यादा काउंसलर्स का यूजेज है। It's one of the benefits that we provide through our organization to employees, और उसमें ना वो कंट्री एकदम पहले पड़ी है उस बेनिफिट को, मतलब इतना हेवी यूटिलाइजेशन है कि समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया इस कंट्री में। तो लोगों से बात करके समझ में आया कि ना some people also, मतलब it is in that country, majority of the people consider this as a social status symbol, कि यार मैं काउंसलर के पास जा रहा हूँ, इज अ सोशल स्टेटस, कि यार मतलब मैं अफोर्ड कर पा रहा हूँ ना, कि मतलब मैं इतनी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ कि मैं तो काउंसलर पे जा रहा हूँ, मतलब कि that part of my like my emotions are managed by somebody else, मतलब मेरे पास एक कोई बंदा है जो मेरे लिए काम कर रहा है, तो भले ही वो मेरे मैरिज को सॉर्ट आउट कराने में काम कर रहा हो, या मेरी फाइनेंशियल हेल्प कर रहा हो, या फिर मेरी इमोशनल थेरेपी करवा रहा हो, बट वो है कि मतलब एक टैग है कि यार मेरे पास आई कैन अफोर्ड अ काउंसलर। तो आजकल काफ़ी बज़वर्ड भी है, बट मैं ये नहीं बोल रहा कि मैरिज काउंसलर्स काम नहीं करते होंगे। आई एम प्रीटी श्योर इतनी सारी शादियाँ रुकी भी हैं, तो कुछ ना कुछ तो जादू कर ही रहे हैं वो लोग, राइट? बट ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि भगवान न करे मुझे कोई ज़रूरत पड़े, बट होगा तो आई वुड रादर टॉक टू माई वाइफ फर्स्ट कि यार क्या चल रहा है यार, मतलब that's how even my thoughts are on mental health therapy, and also just whatever relationships in general, it always be your own thing. I don't think कभी हाँ ये बहुत प्राइवेट स्पेस है, मतलब मेरे लिए इट्स अगेन लाइक वेरी सैक्रोसैंक्ट। मैं किसी तीसरे बंदे को अपनी रिलेशनशिप में कभी आने नहीं देना चाहता, जहाँ तक गिवन द कंट्रोल, मैं कभी, जब तक मेरे पास कंट्रोल है अपनी रिलेशनशिप का, मैं कभी किसी तीसरे को नहीं आने दूंगा बीच में कि यार तीसरे बंदे की जरूरत पड़ रही है झगड़ा रिजॉल्व करने के लिए। आई थिंक मैं बहुत वीक पड़ जाऊंगा उस टाइम पे, मुझे ऐसा लगता है अगर मुझे किसी तीसरे बंदे की जरूरत पड़े। थ्री इज अ क्राउड, भले ही वो किसी भी शेप और फॉर्म में आए, तो okay, let's not get any more imaginative, yeah. Now, तो हमने ठीक है, we talked about relationships, everything. What are your thoughts on modern day dating and relationships? How is it different than what you had in your times? Like अभी तो situationships and all of these terms, hookup, situationship, one night stand, blah blah. What are your thoughts on these?